اجلاس کا آغاز شرکا کے مختصر تعارف اور تنظیم میں ان کے متعلقہ کردار سے ہوا۔ فیڈریشن کے صدر ایم اے مجید نے گفتگو کا آغاز صحافیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صحافیوں کو ظلم و ستم یا انتقام کے خوف کے بغیر اظہار رائے کی آزادی کے حق کا استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فیڈریشن کے اراکین نے ان چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جن کا صحافیوں کو آج کی دنیا میں سامنا ہے، بشمول تشدد، سنسرشپ اور جعلی خبروں کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے لیے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورتحال میں طبی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایک رکن نے تجویز پیش کی ہے کہ حکومت تلنگانہ کو صحافیوں کے لیے ڈبل بیڈ روم کے مکانات فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں ان کے تعاون کی تعریف کرے۔ اراکین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وفاق کو ریاست بھر کے اردو صحافیوں کی حمایت کے لیے متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ جنرل سیکرٹری غوث نے تجویز پیش کی ہے کہ صحافیوں کی فلاح بہبود سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے فیڈریشن کو زیادہ سے زیادہ اجلاس منعقد کرنے چاہیے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ فیڈریشن کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس سے صحافی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے اور اپنے تجربات شیئر کر سکے۔ کئی اراکین نے صحافت کے گرتے ہوئے معیار اور سنسنی خیز اور کلک بیٹ کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں کچھ بول نہیں سکے، ہمارے مسائل نہیں ہو سکے، اس لیے یہ نشست رکھی گئی اور میں بہت ہی ممنون ہوں میں تمام کا کہ آپ لوگ جو ہے جس اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہی آپ کی کامیابی، ہماری سب کی کامیابی، اور یہ ہر ہمارا اردو کا صحافی یہ سمجھے کہ میں ایک انڈیویجول نہیں ہوں بلکہ میں ایک اردو کی آبرو، میرے قلم کی آبرو ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنا کانفیڈنس ڈیولپ کریں۔ یقیناً دیکھیے مسائل تو رہیں گے لیکن مسائل کے ساتھ جد و جہد ہو تو مسائل آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، پھر اور بھی مسائل آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کوئی دنیا میں سکون کا نام کا کوئی آپ تصور بالکل بیکار ہے۔ جہد مسلسل یعنی مسلسل جد و جہد ہی زندگی کی علامت ہے اور یقیناً ہم کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آگے کی کارروائی کے لیے ہمارے جنرل سیکرٹری حبیب صاحب کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی خصوصی میٹنگ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی پہلی قومی کانفرنس کے سلسلے میں جو خصوصی میٹنگ ہے، الحمدللہ اضلاع سے ہمارے رفقا نے جو شرکت کرتے ہوئے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہماری کانفرنس کے جو مقاصد ہیں اس پر آپ بھی تفصیلی طور پہ روشنی ڈالیں اور اضلاع میں اپنے جو صحیفے نگاروں کو خاص طور اردو کے مسائل ہیں وہ مختصر انداز میں پیش کریں، اور اگر آپ تحریری طور پر اگر پیش کریں تو بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو قومی کانفرنس کے قرارداد میں شامل کرتے ہوئے حکومت کو پیش کریں اور مطالبات کو منوا سکیں۔ یہ ہماری جو کانفرنس ہے ایکچولی 2 سال پہلے ہم 200 سالہ اردو جشن اردو کے سلسلے میں یہ کانفرنس کا منصوبہ تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ ملتوی ہوتی گئی۔ الحمدللہ خطائی دے دی گئی ہے اس کو، جو 28 مئی کو منعقد کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اردو صحیفی نگاروں کے جو حیدرآباد میں بلکہ پورے اضلاع میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو نمایاں کرنا اور حکومت سے منوانا، جس میں خاص طور پہ GO 239 جس کا راست وار اردو صحیفی نگاروں پر ہے، اس میں ترمیم کے لیے ہم بارہا حکومت سے نمائندگی کر چکے ہیں، اور صدر مجلس اتحاد المسلمین جناب اسد نوید صاحب نے 3 تا 4 مرتبہ کمشنر ارون کمار صاحب سے بات کی ہے اور اس پر انہوں نے اپنی نمائندگی بھی کی۔ اس کے علاوہ ڈبل بیڈ روم یا زمین کے پلاٹ اس کو جو ہے حکومت نظر انداز کر رہی ہے، جس میں اردو نمائندوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو وہ حکومت سے حاصل کرنا یہ کانفرنس کا اصل ہمارا مقصد ہے۔ ہم کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلایا جائے گا، ان سے تمانیت لی جائے گی کہ وہ ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بنائیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم حیدرآباد میں گئے یہ پورے ریاست سے حکومت پر دباؤ بنے، اس کے لیے ہم متعلقہ اضلاع میں جو عوامی نمائندے ان پر اپنی فیڈریشن کے ذریعے دباؤ ڈالیں گے تاکہ وہ پورا اثر راست حکومت پر ہو، اور ہمارے مسائل جس میں حکومت تو کچھ دیتی نہیں، ایک اگریڈیشن کارڈ جس کی وجہ سے بس ملتا ہے، اور وہ بھی جو ہے GO 239 کے تحت مکمل طور پہ مسدود کر دیا گیا اردو والوں کے لیے، جبکہ تیلگو والوں کو منڈل سطح پہ کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے صحیفی نگاروں، ہمارے اراکین کو
وہ सहूलत फराहम की जाए। اور اس کے علاوہ حکومت جو ریاست میں سرکاری پروگرام ہو رہے ہیں اس کے اندر اردو اخبارات کے نمائندوں کو نمایاں حیثیت دے، جبکہ صرف یک طرفہ طور پہ تلگو والوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمارے صحیفے نگاروں کو، ساتھیوں کو جو اضلاع میں دیہاتوں میں خاص طور پہ منڈل پہ کام کرتے ہیں ان کو احساس کمتری سے نکال کرے، ان میں تربیت فراہم کرے، اور اس کے لیے الحمدللہ اب تک ہم نے 8 تربیتی اجتماعات کا انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی مسلسل یہ کرتے رہیں گے، کرتے ہوئے اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اب میں چاہوں گا مختصر انداز میں اضلاع کے جو صدور ہیں وہ اپنے اپنے اضلاع میں جو مسائل ہیں اس پر روشنی ڈالیں، اور اس کانفرنس کو ہم کس طرح کامیابی سے ہمگرا کر سکتے ہیں، آپ کے کیا ضروری مشورے ہیں اس سے نوازیں۔ جزاک اللہ۔ اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہماری باری آتے آتے وقت کی تحدید عائد ہو گئی، اور آصف صاحب جو ہے ایک لائن کریٹ کر دیے کہ 2 منٹ کا وقفہ ہے آپ کے لیے، تو 1 ہی منٹ میں جو ہے اس کو مکمل کر دیں۔ لیکن میں صدر اجلاس سے اجازت کے ساتھ 2 کی جگہ 4 منٹ لوں گا، چونکہ جو ہے مسائل یہاں پر پیش کیے گئے اس پر بھی جو ہے اختصار سے ہی لیکن کچھ آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا۔ تمام اضلاع، نہ صرف اضلاع بلکہ شہر حیدرآباد کے اردو صحافیوں کے مسائل یکساں ہیں، ایکریڈیشن کارڈ، پھر حکومت سے حاصل ہونے والی مراحل سے متعلق۔ ایکریڈیشن کارڈز کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو ہے سب سے پہلے ایک جانب تو جو ہے اردو سے بالکل ناانصافی ہوئی ہے، حق تلفی ہوئی ہے اردو صحافیوں کی جیو 239 میں، لیکن جہاں تک ایکریڈیشن کارڈز کی اجرائی ہے یا اس کا جو ہے اصول ہے، اس کو جیو 239 نہیں روکتا۔ شرط یہ ہے کہ جو ہے ہم کو جیو 239 میں کیا لکھا ہے، کیا کہا گیا ہے، اس کا بغور جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی سنگاریڈی ضلع میں بھی جو ہے ایکریڈیشن کارڈ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ڈی پی آر او، چھوٹے اخبارات، کیبل چینلز، اس طرح جو ہے لوگوں کو، چونکہ چھوٹے اخبارات سنگاریڈی میں آتے نہیں ہیں اور کیبل چینلز بھی جو ہے نشر نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ جو ہے ان کو کارڈ دینے سے انکار کر دیے تھے۔ لیکن کلیکٹر کے پاس جب میٹنگ ہوئی تو کلیکٹر سے جو ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ ایکریڈیشن کارڈز کی اجرائی جیو کے ذریعے کریں گے یا پھر اس میں کچھ ریلیکسیشن دیتے ہوئے اپنے سہولت کے حساب سے کریں گے؟ تو کلیکٹر کا جواب تھا نہیں، ہم جیو 239 کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے۔ تب ان سے جو ہے ہمارا دوسرا سوال تھا، اس میں کہاں پر چھوٹے اخبارات کا ڈی پی آر آفس کو آنا مینڈیٹری بتایا گیا ہے، بتائیے۔ کیبل چینلز کی نشریات لازمی ہیں، کہاں لکھا گیا ہے، بتائیے۔ تو ڈی پی آر او اور جو ہے ایڈیشنل کلیکٹر بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ نئے آئی اے ایس آفیسر تھے، وہ دونوں مل کے پھر اس کو تفصیل سے جو ہے جیو کو پڑھنے کے بعد میں ہم جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کو جیو میں جو ہے پیرا وائز بتائے تھے، اس کی بھی جو ہے وہ لوگ اچھا سے اسٹڈی کرے، اس کے بعد میں یہ نتیجے پہ پہنچے کہ جیو میں تو کہیں نہیں، اور مجبوراً ان کو تمام چھوٹے اخبارات اور کیبل چینلز کو ایکریڈیشن کارڈ دینا پڑا۔ تو ہم جب نمائندگی کرتے ہیں، نمائندگی کرنے سے پہلے ہم کو بھرپور تیاری کر کے وہاں جانا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اب جیو 239 کا ہے تو اس میں جو ہے صریحاً اردو صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اس تعلق سے گزشتہ 2 سال سے فیڈریشن مسلسل ارباب حکام سے جو ہے نمائندگی کر رہی ہے۔ اس خصوص میں کے ٹی آر سے بھی نمائندگی کی گئی، اس خصوص میں اروند کمار کمشنر آئی این پی آر سے بھی نمائندگی کی گئی۔ اس میں جو ہے تفصیل سے ہم کہاں کہاں اردو صحافیوں سے صرف ایکریڈیشن کارڈ ہی نہیں بلکہ بہت ساری جگہ جیو میں جو ہے ایسے جو ہے نقائص ہیں جس کی جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے ہم کمشنر کو ایک جو ہے بڑا ہی مفصل ایک
یادداشت ان کو پیش کیے ہیں اس میں جو ہے مختلف ناانصافیوں کا جو ہے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. جیسا کہ جو ہے اردو صحافیوں کو اضلاع میں ایکریڈیشن کارڈ دینے کے لیے اگر اسمبلی حلقوں کے علاوہ اگر 2 ڈسٹرکٹ ایکریڈیشن کارڈ چاہیے تو 10 صفحات کا لزوم رکھا گیا ہے، جبکہ تلگو اخبارات میں یہ لزوم نہیں ہے. تو اس تعلق سے اسی طرح کے دیگر جو ہے اس میں جو نقائص ہے اور بیسک جو ہے اس میں جو ہے سب سے بڑی اس کی خامی یہ ہے کہ اس میں لسانی امتیاز بڑھتا گیا ہے، لنگوسٹک ڈسکریمنیشن ہے جیو. تو لیکن حکومت ابھی تک اس پہ جو ہے کوئی توجہ نہیں دی ہے اس پہ. حالانکہ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب تقریباً 3 مرتبہ جو ہے وہ خود ہمارے لیٹر کو فارورڈ کیے ہیں KCR صاحب کو، لیکن ابھی تک اس میں کچھ ہوا نہیں ہے. ڈبل بیڈ روم اور ہاؤس رائٹس کی بات ہے تو اس سلسلے میں جو ہے اورل انسٹرکشنز تمام ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دیے گئے ہیں کہ اپنے ضلع میں جرنلسٹ کو ڈبل بیڈ روم یا پھر جو ہے ہاؤس رائٹس کے ذریعے ان کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے. تو ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر یہ ایکسرسائز شروع کیا ہے. ہمارے ضلع میں بھی جو ہے حلقہ اسمبلی نارائن کھیڑ کے پورے ہو چکے ہیں، حلقہ اسمبلی اندول میں بھی تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، پٹن چورو میں مکمل ہو چکے ہیں، آئندہ ماہ تک سنگاریڈی بھی مکمل ہو جائے گا. ایک زہر آباد کا تھوڑا سا پینڈنگ ہے وہ بھی ہو جائے گا. لیکن جیسا کہ میرے پیشوا مقرر بتا رہے تھے کہ یہ ڈبل بیڈ روم ہاؤس ہونے دو یا پھر جو ہے ہاؤس رائٹس، اس کو جو ہے مقامی MLA یا منسٹر جو ہے ان سے تعلقات کی بنا پر ہی یہ مل رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. حکومت کی فی الحال جو ہے جو بھی ویلفیئر اسکیمز ہے اس کو کنسرن MLA یعنی مقامی MLA سے اس کو مربوط رکھا گیا ہے، چاہے وہ شادی مبارک ہو، ڈبل بیڈ روم ہاؤسز ہو، کلیانہ لکشمی، CMRF، یہ جتنے بھی اسکیمز ہے اس کو جو ہے MLA سے یہ لوگ جو ہے اس کو مربوط رکھے ہیں تاکہ جو ہے اس کا سیاسی فائدہ بھی انہیں حاصل ہو سکے. اور اس مسئلے پر جو ہے ایک عرضی بھی جو ہے ہائی کورٹ میں داخل ہوئی تھی دلت بندھو سے متعلق، جس میں جو ہے اراکین اسمبلی کو اس میں انوالو کرنے پہ اعتراض کیا گیا تھا. بہرحال اب فی الحال تو جو ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کلیکٹر کے ساتھ ساتھ متعلقہ رکن اسمبلی بھی اس میں جو ہے ایک میجر رول ادا کرتا ہے. چنانچہ ہمیں ایک ٹیکٹ فل انداز سے ایک لچکدار جو ہے رویہ اپناتے ہوئے ہم کو رکن اسمبلی اور کلیکٹر دونوں کو ساتھ لے کر یہ چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ کا جو ہے بڑا مسئلہ ہے. ہر طرف جو ہے ہر میٹنگ میں اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک اطلاع عرض کر دوں. یہ حالیہ جو مارچ میں ریاست کا بجٹ پیش ہوا ہے اس میں امپلائز ہیلتھ اسکیم کو ریوائو کرتے ہوئے اس کی ایک نئے رہنمائی خطوط وہ لوگ جاری کرنے والے ہیں. اس کے لیے علیحدہ سے بجٹ مختص کیا گیا ہے. یہ صرف ملازم سرکار کے لیے ہے، اس کے اندر جرنلسٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یعنی اگر آج سے ہم آواز اس سے متعلق جو ہے ہمارا آواز اگر نہیں اٹھائے، ہم مطالبہ نہیں رکھے، ہم جدوجہد نہیں کرے تو آنے والے وقتوں میں یہ جو موجودہ جرنلسٹ ہیلتھ اسکیم کارڈ ہے یہ بھی ختم ہونے والے ہیں. آج کی تاریخ میں تو صورتحال یہی ہے کہ جو ہے آئندہ جو بھی نئی اسکیم آئیں گی اس کے اندر جرنلسٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف ریٹائرڈ امپلائز اور برسر روزگار جو ملازمین ہیں انہی کا تذکرہ ہے. چنانچہ ابھی سے ہم کو ہیلتھ اسکیم کارڈ کے لیے حکومت سے جو ہے شدت کے ساتھ مطالبہ کرنا چاہیے. جہاں تک فری ایجوکیشن کا تعلق ہے، ہمارے ضلع سنگاریڈی میں 100% فری ایجوکیشن کا جو ہے سرکولر جاری ہوا ہے اور الحمدللہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. یہ فری ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے یہ دراصل جو ہے RTE ایکٹ جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ میں جو ہے تمام اسکولز میں 25% غریب طلباء کو ایڈمیشن دینے کا ہے، تو اس کے تحت اس کو جو ہے جاری کیا جا رہا ہے. تو ہم جب بھی جو ہے اسکول سے رجوع ہوتے ہیں تو جو ہے اگر وہ اس کو انکار کرتے ہیں تو متعلقہ MUO سے مل کر
یہ RTE کی تحت کتنے لوگ ایڈمیشن دیے, کتنے لوگوں کو فری پڑھا رہے ہیں, اس کی تفصیلات لے کے اس کے ذریعے دباؤ ڈال کر اس سرکولر کو جو ہے پر عمل کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں ریاستی یونٹ سے جو ہے خواہش کرتا ہوں کہ جو ہے یہ ہر سال الگ الگ اضلاع میں الگ الگ سرکولر, کہیں پہ 50%, کہیں پہ 25%, کہیں پہ 100%, اس طرح کے جو ہے سرکولرز جاری ہونے کی بجائے ریاستی یونٹ حکومت سے نمائندگی کرے کہ جو ہے ایک جیو جاری ہو جس میں جو ہے RTE کے تحت 25% جو فری ایجوکیشن کا پروویژن ہے اس کو جرنلسٹ کے بچوں کے ذریعے فل کیا جائے. اس طرح کا کوئی جیو اگر آ جائے اور ایک ریاستی سطح پہ اگر اس کی ایک پالیسی اگر بن جائے تو ہم کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے اب ہمارے ضلع میں سنگاریڈی ضلع میں ہم حال ہی میں ضلع کے تمام اردو صحافیوں کو 10 لاکھ کا حادثاتی بیمہ ایکسیڈنٹل انشورنس کروائے ہیں. اس کے علاوہ سنگاریڈی میں سنگاریڈی ٹاؤن میں جو صحافی ہے اردو کے ان کے لیے 10 لاکھ کا ہیلتھ انشورنس بھی کروائے ہیں. تقریباً جو ہے 4,70,000 روپے ہمارے کو اخراجات ہوئے ہیں. سب کو جو ہے مفت یہ ہماری طرف سے کوشش رہی کہ ایکسیڈنٹل انشورنس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس بھی ہو, تو تمام ہمارے جو ہے سنگاریڈی کے صحافیوں کو یہ بھی کروائے ہیں. جہاں تک میٹنگز میں یا پھر جو ہے کسی اور جگہ جو ہے صحافیوں کے داخلے پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, تو اس کو جو ہے عہدیدار ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس میں بلدیہ اجلاس میں صحافیوں کی شرکت سے منع کیا گیا تھا. اس کو بیس بنا کر مختلف محکمہ جات میں صحافیوں کے انٹری کو روکا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے ایک نمائندگی حکومت سے ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کا تعلق جہاں تک ہے اس ادارے تک ٹھیک ہے, لیکن عوامی مسائل کو پیش کرنے کے لیے صحافی کو دیگر جو عوامی مقامات ہے یا عوام سے متعلق جو مقامات ہے ان پر جانے سے نہیں روکنا چاہیے. قومی کانفرنس سے متعلق جو گفتگو کی گئی ہے اس میں جو ہے ریاستی قیادت سے جو ہے مزید کچھ وضاحت چاہتا ہوں کہ ابھی جو ماڈریٹرز اور گیسٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں فی الحال تو جو ہے کوئی بھی قومی شخصیت کا جو ہے ذکر نہیں کیا گیا. اگر کوئی قومی شخصیت اگر اس میں شامل نہ ہو تو یہ قومی کانفرنس کس طرح سے ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے آپ جو گیسٹ کو انوائٹ کر رہے ہیں اس میں سیاسی جماعتوں میں MIM, TRS, BJP, کانگریس کو جگہ دی گئی ہے. تو میرا جو ہے خیال ہے کہ مختصر سے وقت کے لیے ہی صحیح کمیونسٹ جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اس کے علاوہ سماجی جہدکار جو ہیں سوشل ایکٹیویٹیز ان کو بھی جو ہے مدعو کیا جائے. یہ جو ہے میری تجویز ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اردو آفیسر سے متعلق جو ہے یہاں پر گفتگو ہوئی ہے. ریاست کے بیشتر اضلاع میں اردو کا ریاست کے تمام اضلاع میں اردو آفیسرز کا تقرر ہوا ہے, لیکن بیشتر اضلاع میں اردو آفیسرز اردو کا کام نہیں بلکہ کسی دیگر محکمے میں ڈپٹیشن پر کام کر رہے ہیں. وہ کہیں پر جو ہے RWS میں, کہیں پر سوشل ویلفیئر میں, کہیں پر جو ہے مائنارٹی ویلفیئر میں کام کر رہے ہیں. اردو کا کام نہیں بلکہ کسی محکومے کا وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں وہ بہت خوش ہیں. اور جب کبھی بھی اردو داں کا جو ہے تقرر اردو کے لیے ہوتا ہے تو سب سے بڑی ناانصافی وہیں سے اردو کے لیے شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر DPR آفس میں ایک صاحب کو جو ہے ہم بڑی کوشش کر کے اردو کے لیے جو ہے ڈپیوٹ کروائے تھے, تو ان کا روزانہ ایک ہی کام تھا کہ DPR کو یہ بولنا کہ صاحب اردو اخبارات میں خبریں لیٹ آتی, اس میں آتے کیا صاحب کون پڑھتے ہیں صاحب وہ ویسٹ ہے. یہی جو ہے ان کا فیڈ بیک جو ہے DPR کو رہتا تھا. تو پھر آخر میں ہم کو مجبوراً جو ہے ان کو وہاں سے واپس بھیجانا بھی پڑا. بہرحال کانفرنس میں ہمارے ضلع سے ہم انشاءاللہ جو ہے میکسیمم طور پر جو ہے
زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے شرکت کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہے شاید جو ہے ہم تمام لوگوں سے جو ہے رائے حاصل کرنے کے بعد میں صدر صاحب یا جنرل سیکریٹری صاحب ہم سے کہنے والے ہیں, تو میں ان سے پہلے کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ہم کو کانفرنس کے انعقاد کے لیے اگر فائنینشیل اسسٹنس کے لیے کچھ مالی تعاون کے لیے بھی ہم سے اگر کہا جائے تو آپ اگر کچھ اس سے متعلق لیٹرس وغیرہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام صحافی حضرات جو اضلاع سے آئے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام. دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. تمام اضلاع کے صحافیوں کے مسائل سننے کے بعد مجھے یہ مصرع یاد آیا, چونکہ ہمارے بھی کچھ غم ہیں لیکن کافی کم ہیں. سیم مسائل حیدرآباد ضلع میں بھی ہے, اور اس سلسلے میں گزشتہ 2 ہفتے قبل رکن پارلیمان حیدرآباد سے نمائندگی کی گئی تھی کہ وہ جو ہے حکومت کو توجہ دلائیں, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. چونکہ ہم حیدرآباد ہی میں رہتے ہیں, ہماری رسائی اسٹیٹ کمیٹی تک فوری طور پر ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کافی آسانی سے حل ہوں گے. جہاں تک کانفرنس کا معاملہ ہے, بھرپور تعاون حیدرآباد یونٹ کی طرف سے میں اس کا تیقن دیتا ہوں. السلام علیکم. صدر جناب عزت یاب ماجد صاحب اور سائن نشین پر تشریف فرما ہمارے جنرل سیکریٹری غوث صاحب اور نائب صدور جیلانی صاحب, فیصل صاحب اور تمام سائن نشین پر تشریف فرما, اور ہمارے ضلع بھر کے صدر و جنرل سیکریٹری, میرے صحافی برادری, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج مجھے قومی کانفرنس کے موقع پر کچھ بولنے کا موقع دیا گیا ہے. میں شکر گزار ہوں اس فیڈریشن کا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج تمام اضلاعوں کے جو باتیں جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اپنے تکالیف کو بیان کیے ہیں. واقعی کافی اضلاع میں تکالیف ہے, تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ماجد صاحب یا ہم لوگ, میں بھی اس میں شامل ہوں فیڈریشن میں, انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم مل جل کر اگر حکومت سے منوائے تو کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو ناممکن نہیں ہے, ہر کام ممکن ہے. لیکن ہم پہلے متحد و منظم ہو کر ایک پروگرام بنا کر اگر ہم نمائندگی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم حکومت کو جو ہے بالکل تختے کو یہ کر سکتے ہیں. تو میں ہمارے ماجد صاحب سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی, فیصل صاحب بھی زمانے ہمارے ساتھ, میں بھی سیاست میں تقریباً 27 سال کام کیا ہوں, ویسے سے اسٹاف رپورٹر تھا نرمل ڈسٹرکٹ کا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے کو اتنے صحافی برادری میں آج ہم کو فیڈریشن میں کام کرنے کا موقع دیا گیا ہے. میں ماجد صاحب کا اور تمام لوگوں کا, غریب کو جو ہے موقع دے کر جو کام کیا, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ ہر طریقے سے ہمارے فیڈریشن میں نائب صدر کی حیثیت سے مالی تعاون رہن دو یا کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ہر قدم پہ ہر جگہ میں قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ایک ہی خواہش کروں گا کہ آج جو تکالیف اضلاعوں میں ہیں وہ تکالیف کو اگر دور کریں گے تو ہمارا فیڈریشن کام کا ہے بولیں گے. اب جیسا کہ ہمارے وسیم صاحب شکیل صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو اکارڈیشن کارڈ نہیں ملا, جس میں میرے کو بھی نہیں ملا, لیکن میں یہ کلکٹر کو یہ ڈی پی آر کو بولا میرے کو اگر نہیں ملا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جو مستحق لوگ ہیں ان لوگوں کو دیا جائے. میرے کو کنٹینیو 28 سال سے اکارڈیشن کارڈ ملا جا رہا تھا, لیکن اب اس وقت جو ہے میرے کو ایز اے TRS لیڈر یا گولڈ شاپ ہے یا کسی طریقے سے میرے کو جو ہے نوبر کیا گیا, لیکن میں اس کی فکر نہیں کروں. لیکن ہمارے اضلاعوں میں جو تکالیف ہے صاحب اس کو تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہمارا فیڈریشن اگر متحد ہو کر یہ قومی کانفرنس میں اگر مطالبات رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی قدم چومے گی. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, کیونکہ 2 منٹ بولے 3 منٹ ہو چکا ہے, اس لیے میں معذرت کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ. حالیہ عرصے میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا ہاؤس سائٹس کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے. تو مینجمنٹس اور پریس اکیڈمی پر جو انحصار کیا جا رہا ہے, شاید
ये मसला और गंजलग होता जाएगा। अगर इस मसले को हल करना है तो फेडरेशन, यूनियंस और जो भी तंजीमें हैं सब मुश्तरका तौर पर अगर कोशिश करते हैं तो मसले का कोई हल मुमकिन हो सकता है। जहाँ तक कौमी कॉन्फ्रेंस की बात है, अगर जैसा कि फैसल साहब ने कहा कि अगर इसमें किसी कौमी शख्सियत को मद्दू न किया जाए तो ये कौमी कॉन्फ्रेंस किस तरह से होगी। तो पिछले 9 साल में ऐसी कई कौमी शख्सियतें उभर कर आई हैं जो उर्दू, हिंदी, सहाफ़ती बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं और मसाइल से वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि उनमें से चंद एक शख्सियत को मदऊ करते हुए इस कौमी कॉन्फ्रेंस को अहमियत का हामिल बनाया जा सकता है। शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस 28 मई को फाइनलाइज किया गया है। शेड्यूल है उसका सुबह 9 से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम रहेगा। तकरीबन तो पूरे ऑनलाइन रहेंगे, उसके अलावा भी जो भी नहीं करे ऑनलाइन, वहाँ पे आने के बाद में वहाँ पे भी आप लोग को एक काउंटर रखा जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। 9 to 10 AM तक ये अवेलेबल रहेगा आपको। उसके बाद में 10 AM से लेके 10 बजे से लेके 11:15 तक मॉडरेटर्स की जो तो स्पीच है, इसमें एक श्री राम करी एडिटर डेक्कन क्रॉनिकल है और मुख्तलिफ दूसरे लोग भी रहेंगे। 10 बजे से 11:15 तक। 11:15 से 11:30 के बीच में टी ब्रेक, चाय, फिर उसका ब्रेक रहेगा आपको। फिर 11:30 से 1 बजे तक VIP डेलीगेट्स का रहेगा। टी हरीश राव फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर, मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर, असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग का प्रोग्राम। 1 o'clock 1 बजे से फिर 1:45 तक नमाज और लंच के लिए वक्त दिया जाएगा। 1:45 से 2:30 बजे तक फिर टॉपिक्स पे डिस्कशन रहेगा। मॉडरेटर्स का ये भी के श्रीनिवास रेड्डी एडिटर तेलंगाना टुडे और सैयद अहमद जिलानी मॉडरेटर्स की स्पीच है। फिर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक मुख्तलिफ दूसरे पार्टीज़ के भी मॉडरेटर्स, बीजेपी और दूसरे जो भी पार्टीज़ हैं उनके भी जो है तो स्पीच रहेगी इसमें। 3:15 से 3:30 बजे तक फिर टी ब्रेक है। 3:30 से 4:30 तक कांग्रेस पार्टी लोग का है। रेवंत रेड्डी TPCC प्रेसिडेंट, मोहम्मद अली शब्बीर कन्वीनर। 4:30 से 4:45 तक फिर ब्रेक है। 4:45 से 5:45 तक वैलिडेटरी फंक्शन है पूरा। अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर ऑफ दिगर। ये उस दिन का प्रोग्राम शेड्यूल है। दूसरा और एक जो है तो आप लोग को गूगल फॉर्म्स के जरिए से जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कॉन्फ्रेंस का, गूगल फॉर्म्स के जरिए से जो है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया। इस पे आपको लिंक दे दी जाएगी पूरों को, जो भी डिस्ट्रिक्ट अहदेदार से उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी। अब ये गूगल फॉर्म्स में मेन ये जो है तो आपके ईमेल के वेरिफिकेशंस के जरिए से पूरा अपलोड होगा। मेन आपका इसमें पहले तो ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आईडी आने के बाद में दूसरा है मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है या नहीं, हाँ या ना में चेकबॉक्स टिकिंग है, सिंपल सा है। बाजू में उर्दू में भी दिया गया है, इंग्लिश के साथ साथ आपको उर्दू में भी उसका वजाहत दी जा रही है, जी हाँ या नहीं, हाँ या ना। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, आप किस अजला से आप ताल्लुक़ है, पूरे 33 अजला का डिटेल्स दिया गया है। जो भी आप अजला से ताल्लुक़ है उस अजला को टिक करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर आपका अपना नाम, आप किस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से इदारे के लिए आप जो है तो सहाफ़त कर रहे हैं, ठीक है, वो है। फिर आपका इदारा क्या टाइप का है, या वो प्रिंट मीडिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या डिजिटल मीडिया से है, आप किससे ताल्लुक़ रख रहे हैं, आपका क्या ओहदा है, उसमें डेजिग्नेशन क्या है, और आप कौन से एरिया के लिए काम कर रहे हैं, या स्टाफ रिपोर्टर है या फिर एरिया पर्टिकुलर या मंडल रिपोर्टर है या कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी आप कौन से इलाके के लिए आप काम कर रहे हैं। आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, इसमें आपकी कितने साल का तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके साथ साथ मजीद फिर आप या जर्नलिज्म में कुछ डिप्लोमा या डिग्री करे हुए हैं, हाँ या ना में रहेगा, अगर है हाँ या ना, नहीं तो जस्ट लिव इट ऑप्शन है। फिर आपका या तो अक्रीडेशन, अगर आप अक्रीडेटेड है तो उसके बाद में अक्रीडेशन कार्ड की फ़ोटो, या नहीं तो इदारे के ID कार्ड की फ़ोटो अटैच करना है, स्क्रीनशॉट या प्रिंट, वहीं से कैमरे क्लिक करके भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो है तो 100 रुपीज़ फीस रखी गई है कॉन्फ्रेंस की।
वो आप गूगल पे, पेटीएम जो भी है उसके थ्रू पे करके उसका स्क्रीनशॉट जो है तो यहाँ पे अटैच करना है फोटो, तो उसके बाद में ही आपका फाइनल सबमिशन होगा। ये फाइनल सबमिशन भी आपको फिर अपने मेल पे कंफर्मेशन मेल भी आएगा इसका। और मजीद अगर कुछ है तो ये तो वो अपडेट किया जाएगा जो भी आप लोग सिखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल माजिद हुसामी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ज़िला नागर कर्नूल कल्बकुर्ती का मैं नुमाइंदा हूँ। मसाइल तो तकरीबन सब सेम ही मसाइल हैं। डबल बेडरूम का मसला तो है, इससे फेडरेशन के नायब सदर की हैसियत से तशरीफ आया हूँ मैं। डबल बेडरूम का मसला हमारे पास तो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, उस ताल्लुक़ से बातचीत भी नहीं हुई है। कई बार नुमाइंदगी की गई मगर उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, चाहे वो ज़िला कलेक्टर हो या फिर हमारे कल्बकुर्ती के MLA हो, तो जानिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी दूसरी। और दूसरी बात, इससे कबल हमारे पास मंडल के कई रिपोर्टर्स को काट दिया गया था, वो 38 जीवों की वजह से वो रोक दिया गया। और उस जानिब अगर खुसूसी तवज्जो दें तो काफ़ी हमारे पास सहाफ़ी हैं जो हमेशा मुस्तैद रहते हैं इस सिलसिले में। और तीसरी अहम बात, वो कई बार हम लोग नुमाइंदगी की है माजी साहब एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू मेंबर के लिए। कई बार नुमाइंदगी, जब से वो अनिल प्रकाश हमारे थे वो, उनके अलावा कई बार नुमाइंदगी की और उसको तवज्जो नहीं दे रहे हों। हालांकि अभी कलेक्टर है हमारे पास उदय कुमार बोल के, वो शुरू में तो बहुत तयक़ुन दिए थे मगर फिर बाद में आने के बाद फिर वही अपना रंग बदल दिए हैं। तो ये हमारे 2-3 मसाइल हैं। अगर इस जानिब फेडरेशन अगर खुसूसी तवज्जो अगर ले तो इंशाल्लाह हमारे ज़िले में इंशाल्लाह फेडरेशन का काम भी होगा और काम भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैं फेडरेशन के अहम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से तशरीफ़ लाए हमारे सुदूर व मुतमदीन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़िले आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्रेडिटेशन कार्ड्स तो तमाम सहाफ़ियों को मिले हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक्रेडिटेशन कमेटी में बहैसियत मेंबर था और हमारे उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से ज़िला कलेक्टर को नुमाइंदगी करते हुए ज़िला कलेक्टर मुझे नामज़द किए थे कि हम उर्दू के ताल्लुक़ से एक हमारा नुमाइंदा होना। लिहाजा मैं खुद एक्रेडिटेशन कमेटी मेंबर रहते हुए आदिलाबाद में हमारे जो आदिलाबाद नया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमारे पास पूरे सहाफ़ियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्रेडिटेशन कार्ड दिलवाए हैं। और हमारे पास जो दीगर मसाइल हैं जैसा कि डबल बेडरूम हो या प्लाट्स जो हुकूमत की जानिब से वायदा किया गया था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए भी ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद और मुकामी रुकन असम्बली जोगर रमाना साहब को भी हम लोग नुमाइंदगी कर चुके हैं। लिहाजा वो भी वायदा करे हैं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन से खबर देंगे और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। जब कभी भी इंशाअल्लाह होगा हम सदर मोहतरम को इतला देंगे ये हमारे पास जो काम हो रहा, अगर नहीं होने की सूरत में फिर हम रियासती सतह पर उससे एहतजाज करेंगे या उसमें हम लोग फाइट करते हुए हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है साहब कि हमारे पास जो मसला हो रहा हमारे उर्दू सहाफ़ियों को, अगर हम हेल्थ कार्ड, वो जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है अपना, सिर्फ वहाँ पर कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। लिहाजा हम अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से अगर हम कुछ बात करते हुए कुछ वहाँ पर हम लोग कुछ परसेंटेज कम करके या जो भी फीस होगी उसके लिए अगर कोशिश करें हमारे फेडरेशन की जानिब से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फैमिली को बेनिफिट होगा, हम लोगों को भी बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट से तो हमको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है, उसी वजह से हम लोग तो पीछे हैं। और दिगर जैसा कि तेलुगु यूनियन वाले हैं वो लोग मुकामी सतह पर भी, जैसा कि अजला में भी वो लोग क्या कर ले रहे हैं, एक यूनिटी बना लेके वहाँ पर ऐसे कुछ कार्ड्स बना ले रहे, कुछ डॉक्टर से मिलके वो लोग ऐसे काम कर रहे। लिहाजा अगर हम भी इस तरीके से अगर रियासती सतह से अगर शुरू करें तो अजला में भी हम लोग वो काम को चालू कर सकते हैं, क्योंकि रियासती सतह से हमको परमिशन मिला कि भाई वहाँ के डॉक्टर से मिलके बात करके कुछ वहाँ से अगर अलग से कार्ड बना के रखें, जब कभी भी हम जाए हमको एक 50% डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि हम एजुकेशन वगैरह में 50% डिस्काउंट लेते हैं अभी भी,
तो वो भी अगर हुआ तो बेहतर रहेगा। अगर रियासती सतह से अगर वो काम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अजला में होना बोले तो भाई एक अजला वाले कर रहे, दूसरे अजला वाले नहीं करते, उसी वजह से। तो अगर ये इसका हेल्थ कार्ड का अगर काम हुआ तो बेहतर रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा तो कुछ नहीं, सिर्फ ये प्लाट्स और ये डबल बेडरूम वगैरह का मसला है, वो रियासती सतह पर भी चल रहा है। इंशाल्लाह जब कभी भी आप लोग जैसा 28 तारीख को कॉन्फ्रेंस रखें, इंशाल्लाह हम हमारी जानब से जितने भी अजला से जितने भी सहाफ़ी हो सकते तमाम सहाफ़ियों को लेकर इंशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे, और जो भी हमको जिम्मेदारी दी जाती है रियासती यूनिट की जानिब से इंशाल्लाह हम उसको निभाएंगे। जज़ाकल्लाह। एक ऐसा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जो हर महाल में पीछे है समझिए। कई यूनियनें आई, इससे पहले भी यूनियनें बनी, लेकिन कोई काम मुस्तकिल तौर पे नहीं हो सका। हर आदमी अपना अपना काम करके चले गया। इसीलिए हमने हमारे सदर साहब से मिलकर जो फेडरेशन अभी 4 जनवरी को नई यूनियन कायम की है आसिफाबाद में, कि इस यूनियन के ज़रिए हमारे जो मतालिबात है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स के, जो बहुत ही अजीब हालात में है, TUWJU तो बहुत बड़े बड़े स्ट्राइक करके मनवाना चाहता है, वो अलग यूनियन है। उन लोग अपने बड़ी बड़ी स्ट्राइक करके फेडरेशन क्या घर दिलाएंगे, डबल बेडरूम दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। खैर क्या दिलाए नहीं दिलाए उनको ही मालूम हुआ। लेकिन अभी अभी हमारी यूनियन जो 4 जनवरी को फेडरेशन बनी है, जिसमें हमारे सदर साहब सलीम बेग साहब हैं, हम लोग उनके साथ है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि सबसे में पहले हमारे रिपोर्टर्स के बच्चों को जो 50% फीस जो माफ़ की जा रही है वो नहीं हो रहा है। DO की तरफ से लेटर लिखने के बाद भी 25% मान रहे हैं स्कूल वाले, क्योंकि हमको नुकसान हो रहा है, ये है वो है बल्कि बता रहे। तो उसके लिए हमारे कमीशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग लेटर अगर कलेक्टर को गया तो तमाम बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आजकल फ़ीस बहुत ज़्यादा है साहब, स्कूल में 25-50 हज़ार ऐसा कुछ है। तो वो फ़ीस अगर 50% माफ़ होती है तो हमारे रिपोर्टर्स के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हेल्थ कार्ड्स का भी, हेल्थ कार्ड्स का ऐसा है तकरीबन हमारे उर्दू रिपोर्टर्स को हेल्थ कार्ड क्या है वो भी नहीं मालूम, कैसा डाउनलोड करना है, कैसा। हम लोगों को तो पुराने लोगों को तो लाइफ लाइन बोल के कार्ड्स इशू हो गए, वो कार्ड्स वेलनेस सेंटर में जाके मिलने के बाद वो कार्ड्स काम करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। अभी जो नए आए हैं उन लोगों को हेल्थ कार्ड के बारे में नहीं मालूम। तो हेल्थ कार्ड्स के बारे में भी अगर आप लोग हुकूमत से प्रेशर धरवा के काम करवाएं तो अच्छा रहेगा साहब। इसके अलावा भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत से, जैसे डबल बेडरूम है, डबल बेडरूम किधर है क्या है अभी तक किसी को मालूम नहीं। सिर्फ हम एहतजाज करें, हमारी फेडरेशन की तरफ से हम लोग अभी तक एहतजाज नहीं शुरू किए। डबल बेडरूम का मामला ये है कि हुकूमत या तो MLA के थ्रू देना चाह रही, क्योंकि MLA ही सब कुछ होता है। हमारे पास 2 MLA है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के, एक मिस्टर कोनेरू कोनप्पा और मिस्टर आतमसकू। कोनेरू कोनप्पा साहब ने अभी तक उर्दू वालों के साथ कोई मीटिंग नहीं की, ना उनको ऐसा दिख रहा है कि उर्दू वाले नजर नहीं आ रहे, जबकि उर्दू वाले ही उनके तमाम सियासत मुंसिफ एतमाद में उनके तमाम न्यूज़ सारी स्टेट तक हम फैलाते हैं। तो उन्होंने अभी तक ना तो हमारे उर्दू रिपोर्टर्स को कुछ प्लाट्स के वो भी मिले हैं, क्या बोलते हैं अपने पट्टे भी मिले हैं। सिर्फ हमारे पास पट्टे रह गए, ज़मीन नहीं है। जाके MLA से 10 बार मिले, ऐसा पढ़ के वो बात को कचरे की कुंडी रहती उसमें डाल देते हूँ। इतने अच्छे MLA हमारे, बहुत तारीफ के काबिल है, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन रिपोर्टरों से क्या उनकी दुश्मनी है मेरे को समझ में नहीं आता। तो इसीलिए साहब आपसे गुजारिश है कि ये डबल बेडरूम के बारे में कोई ऐसा कानून कि तमाम रिपोर्टर्स को आए, उसकी सर्वे हो और सबको मिले जिसको घर नहीं है। अब हुकूमत तो बड़े बड़े वादे कभी सुप्रीम कोर्ट से आर्डर्स आ गई, ये आ गए वो आ गया, आपको तो सबको मालूम है। लेकिन डबल बेडरूम में भी उर्दू सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया जाएगा। देने के वक्त लेने वाले तो ले लिए और बेच लिए, लेकिन हमारे आसिफाबाद काबनगर के रिपोर्टर्स परेशान हैं। इसलिए आपसे ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फेडरेशन की तरफ से आप डबल बेडरूम और दीगर मसाइल पर भी रोशनी डालें और हमारी मदद करें। इंशाल्लाह ज़रूर हम फेडरेशन के लिए कौमी अभी जो कन्वेंशन होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जी जान से काम करेंगे
और इंशाल्लाह ज़रूर उसको कामयाब बनाएंगे। खुदा हाफिज़। नुमाइंदा हूँ। अब जो अजला में जो प्रॉब्लम्स है तकरीबन आप लोगों को मालूम है, अब शाहिद भाई जो बोले तकरीबन हर अजले में वही प्रॉब्लम है। एक्रेडिटेशन के मामले में रहने दो या हेल्थ कार्ड के मामले में रहने दो या कोई भी मिनिस्टर या एमएलए के पास गए तो अपने सेल्फ ताल्लुकात से काम कर लेकर निकलना पड़ रहा। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये पेपर का हूँ, वो पेपर का हूँ, ये यूनियन का हूँ, वो कुछ भी नहीं चल रहा। अब जो भी है अपने सेल्फ उससे चल रहा। तो अब ये यूनियन में हमारा जुड़ने का भी मकसद ये है। अब माजिद साहब इसमें है, बहुत सीनियर है आपके, हम बहुत पहले से उनकी इज्जत करते हैं, फील्ड में उनको आइडियल मानते हैं। तो माजिद साहब को अब ये यूनियन में देख के हम सब इसमें शिरकत करें। तो अब हमारे को एक उम्मीद है कि हमारे साथ अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो हमारे मसलों को जो है ना आप लोग दिलचस्पी से ज़्यादा तवज्जो देके इसको हमारे को सपोर्ट करते बोल के हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। और दूसरा कुछ भी नहीं हमारा फ़ायदा, आप लोगों से उम्मीद है आप हमारी रहनुमाई करिए। अजला से जो भी हम आ रहे ना तो हमारी आप लोगों रहनुमाई करिए। और मेन हमारे को जो प्रॉब्लम्स जो है रिपोर्टर मतलब हम जो अपने आप को हम उर्दू के हैं, अब कहाँ जाना, किसको पूछना, ऑफिसर से कैसा करना, आप जो कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में हर अजला में आप जो है ना इसको प्रोग्राम को जो है ना कंडक्ट करें तो बेहतर रहता। क्योंकि हर बार हम लोग सब डिस्ट्रिक्टों से जो है ना यहाँ तक आना करना, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिपोर्टर्स खासकर उर्दू के रिपोर्टर्स के लिए ही जो है ना आप जैसा कि हमारे जिलानी भाई साहब है ATV के, तो उनके भी प्रोग्राम्स हम देखते रहते। तो इनके जो है ना हम वहाँ कैसा अप्रोच होना, हायर ऑफिसर्स के पास कैसा अप्रोच होना, हमारे राइट्स क्या है, हम पूछ सकते नहीं पूछ सकते। अब कई जगह सिविल हॉस्पिटल्स में भी हम जा रहे ना, रिपोर्टर है अलाउ नहीं कर रहा, अंदर आने नहीं दे रहा। अंदर मसले क्या हो रहे हैं क्या है, 2 कांस्टेबल को ठहरा कर दे रहे, अंदर आने नहीं दे रहे, अंदर क्या हो रहा है क्या चल रहा आवाम को बताने नहीं दे रहे। तो एकदम पाबंदियां कर दिए ये हुकूमत में जो है ना, एकदम टाइट करके रख दिए, हमारा बिल्कुल हमारी आज़ादी खींच लिए। तो इस ऐसे मूवमेंट में हम अंदर घुस के ज़बरदस्ती फोर्सफुली घुस सकते हैं नहीं घुस सकते, कहीं भी हम लोग कोई भी ऑफिस में, अब सिविल हॉस्पिटल में मैं आपको वो एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत से जो है ना ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, बहुत से जो है ना इदारे है, जैसा टिमरी स्कूल से अंदर अलाउ नहीं कर रहे। क्या करेंगे हम रिपोर्टर्स, क्या करना। तो ऐसे चीज़ों को जो है ना आप लोग सीनियर साहब भी जो है ना हमारे राइट्स क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हमारे हक क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसे थोड़े चीज़ों को आप जो है ना करिए। और रिपोर्टरों को जो है ना छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो भी रहते, अब वो टूल गेट का है, तेलुगु का हम दो, उर्दू का रहने दो, कोई से भी पेपरों का रहने दो जो है ना, अब तेलुगु है ये कोई से टूल गेट जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं टूल फीस के दूसरे जगह पे जो है ना चल रहा। सिद्दीपेट का है, सिद्दीपेट के साहबियों को छोड़ दे रहे हैं, अब करीमनगर से है वहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे आप लोग जो है ना एक नुमाइंदा एक अपने तरफ से एक नुमाइंदगी की जाए फेडरेशन की जानिब से, तो ये पूरे आप रिपोर्टर्स को और जो है ना हमारे को हमारा नाम और इसका हमको जो है ना क्रेडिट मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो मौका दिया गया है मुझे आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का, आप लोगों तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर मुहतरम, हम सब के रहनुमा जनाब एम.ए. माजिद साहब और तमाम नशीन पर तशरीफ़ फरमा नायब सदूर जनरल सेक्रेटरी गौस मुहीउद्दीन साहब, हबीब अहमद अल-जिलानी साहब, हबीब अली अल-जिलानी साहब और अब्दुल क़ादिर फैसल साहब, और मेरे सामने बैठे हुए जनाब नईम गौरी साहब एग्जीक्यूटिव एडिटर खुलनामा आज़ाद तेलंगाना, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन। सबसे पहले मैं फेडरेशन की रियासती कमेटी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का जो बेड़ा उठाया है, इसके लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम मराहिल को आसान फरमाए और कामयाबी के साथ में ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मिल हो। इस सिलसिले में सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो भी जिम्मेदारियाँ हम खादिमीन फेडरेशन के ज़िम्मे जो दी जाएंगी,
इंशाअल्लाह हम उसको खुश दिली से कबूल करेंगे और उसको इंशाअल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। और रही बात मसाइल की, तो जैसा कि हमारे एक भाई मुझसे पेशरो मुखर्रिर ने फरमाया कि अदला के मसाइल हर जगह एक जैसे हैं, और लेकिन इसमें एक चीज़ है कि बाज़ मकामात पे जो है कुछ आसानियां हैं, बाज़ मकामात पे जो है, अब जैसे कि निर्मल ज़िले निर्मल में गुज़िश्ता मियाद में जो है मैं ज़िला एक्रेडिटेशन कमेटी का मेंबर था, तो कोशिश हम लोगों की ये रही कि तमाम मंडल सतह के सहाफ़ियों को भी, फ्रीलांस सहाफ़ियों को भी, सबको एक्रेडिटेशन जो है दिलाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त में हमारी एक कलेक्टर थी, लेडी कलेक्टर थी, वो मोहतरमा प्रशांत थी, तो उन्होंने भी भरपूर ताउन किया और सभी को जो यहाँ तक के मंडल सतह के उर्दू रिपोर्टर्स को भी सभी को एक्रेडिटेशन मिला। लेकिन इस मरतबा जो है चूँकि उसके बाद सारा जब DPRO साहब भी जो उस वक्त में जो है हमारे पास मुसलमान साहब थे, लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि हमारे पास चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एक्रेडिटेशन कमेटी ज़िला कलेक्टर साहब मुसलमान थे और DPRO वो हमें वो जो है एक्रेडिटेशन को रोकने के मामले में सबसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा रोल रहा उनका। वो जितने लोगों को छांट सकते थे, हुआ ये कि जो है कोविड के ज़माने में उसी वक्त पे वो नए नए आए थे और कोविड उसके बाद जो है वो बड़ा तेज़ी से जो है कोविड की वबा फैली, तो उस वक्त में जो है कुछ सहाफ़ियों ने उनसे मुताल्लिक़ जो है कुछ चीज़ें अपने अखबारात में ख़बर की शक्ल में उसको शाये की थी। बस वो उसमें तेलुगु अखबारात के सहाफ़ी भी थे, उर्दू अखबारात के सहाफ़ी भी थे, उन्होंने उसको दिल में रख लिया। और अब जब एक्रेडिटेशन का मामला आया तो उसके बाद में जो है उन्होंने जितने एक्रेडिटेशन वो आमदन रोक सकते थे उन्होंने रोका, और DPRO के ऊपर भी मुसलसिल दबाव डालते रहे। हम लोग जब भी DPRO से नुमाइंदगी किए तो DPRO ये हमेशा ये बोलती रही, खुद इनसे जाके नुमाइंदगी करते तो बोलते कि एक हफ्ते के अंदर जो है मैं DPRO से बात करके सबके क्लियर करा दूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यहाँ तक कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके साथ साथ जो है बीच में कुछ हमारे अपने जो उर्दू बिलखुसूस जो है उर्दू सहाफ़ियों की जो यूनियनें हैं वो उनके आपसी मामलात, आपसी इख्तिलाफात भी जो है हमारे कलेक्टर साहब के लिए मामिल बने एक्रेडिटेशन को रोकने में। और हमेशा जब भी मतलब ये कि एक सहाफ़ी के खिलाफ दूसरे सहाफ़ी की शिकायत, और फिर जो है अगर किसी के खिलाफ कोई खबरें लिखी गई है तो उनको, यानी अगर कोई मौजू बात थी, मतलब वाकई अगर कोई ऐसी बात थी जो लिखी गई थी तो उन सहाफ़ियों के खिलाफ में जो है वो साहब जिनके बारे में या वो कायद, वो लीडर जिसके बारे में खबर लिखी गई थी उसको इस्तेमाल करते हुए जो है तहरीरी काम्प्लेंट्स ऐसा करा के जो है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मुसलसिल, मैं, हमारे अकबर खान साहब और हमारे एजाज खान साहब वगैरह मुसलसिल जो है DPRO से मिलते हुए, कलेक्टर साहब से भी मिलते हुए, उनसे नुमाइंदगी करते हुए तकरीबन लोगों के जो है सब उर्दू वालों के क्लियर करा लिए। 10 से 11 लोगों के बचे हुए हैं। उनमें से एक मसला क्या है बोले तो वहाँ पे एक बात इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुआ हो कि DPRO और कलेक्टर के जहन में ये बात बिठा दी गई कि भाई, अब ऐसा हुआ भी, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है वो, कि कई लोगों ने जो एक्चुअल जो है वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से अपने लेटर्स लेके दाखिल किए। अब ये बात वहाँ DPRO और जो है कलेक्टर के पास मशहूर हो गई कि भाई इन्होंने 20-25 हज़ार रुपये जो है दे के जो है एक कार्ड हासिल किए। तो ये भी एक वजह थी। जो अब जो 13 कार्ड जो तकरीबन रुके हुए हैं हमारे पास में, ये इसी बुनियाद पे रुके हुए। उसमें से सिर्फ हमारे 3 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे जो है वो काम कर रहे हैं। उनके सिलसिले में वो 3 कार्ड, उसके सिलसिले में यहाँ तक के खुद इस मरतबा जो है हम लोगों की नुमाइंदगी करते रहे और खुद हमारे एजाज खान साहब का भी कार्ड रुका हुआ है। हालांकि जिनके पास जो है, हम लोगों के पास तकरीबन गुज़िश्ता 25 सालों से जो है मुसलसिल एक्रेडिटेशन है, लेकिन ये एक्रेडिटेशन इस मरतबा जो है खुद हम लोग यदि नुमाइंदों जिनके लिए हम नुमाइंदगी कर रहे, लिहाजा जो ये सामने आ रहे तो इनको भी जो है किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाए। और वही लोग जिनके मतलब जो लोग एक्चुअल जो है जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग जो लेके आए, मतलब मुख्तलिफ इदारों से जो भी इदारों से लाए हैं, उन लोगों की ये शिकायत कि भाई एजाज साहब या वसीम साहब या अकबर खान साहब इस तरीके से जो है जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, भाई
तो इस तरीके से जो है एजाज भाई खुद भी उसका शिकार हैं अब तक। अब कोशिश इस बात की है कि चूंकि अब नए कलेक्टर साहब आए हैं तो एज ए कलेक्टर जो है इनकी पहली पोस्टिंग है, तो उनसे पर गुज़िश्ता भी हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अभी तो आया हूँ तो फिर DPR से तफसीलात लेके इंशाल्लाह मैं ये क्लियर करूँगा, इसका इस बात का तयखुन भी दिए। तो और फिर हमारी जो 2 दिन पहले जो है मैं और हमारे एजाज खान साहब और अकबर खान साहब जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और जो है DPR से हम लोग मुलाकात करके जो है जो फेडरेशन की हमारी जो अपने डायरीज जो भेजी गई थी वो जो है हम लोग फेडरेशन की जानिब से उनको दिए हैं। उस मरतबा भी मुख्तसर सी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि फिर जल्द से जल्द हम लोगों के साथ एक इजलास करके एक मीटिंग करके इंशाल्लाह उसको क्लियर करेंगे। और दूसरी बात क्या है, हमारे पास में जो है थोड़ा सा मामला क्या है बोले तो ये फेडरेशन के झगड़ों में मतलब फेडरेशन और जो है मतलब यूनियंस के जो झगड़े हैं हमारे, अब फेडरेशन बनने के बाद से हमारी ये कोशिश है कि सभी यूनियनों को सबको एकजा करके लेके चले। हम लोग नहीं चाहते कि भाई अभी अब तक जो हम लोग जो नुकसान हमारा हुआ है वो सिर्फ हमारे अपने आपसी इख्तिलाफ की वजह से हुआ है। तो हमारे सदर साहब की भी यही हिदायत थी, हमारे जो है मरकजी कमेटी से स्टेट कमेटी के जिम्मेदारों की भी यही हिदायत थी कि भाई जितने लोगों को हम जोड़ सकते जोड़ें। तो ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है चल रहा है और बहुत मुमकिन है कि शायद आइंदा 1 महीने 2 महीने के अंदर तकरीबन ज़िले के सभी उर्दू सहाफ़ी इंशाअल्लाह जो है फेडरेशन के जो है झंडे तले आ जाएंगे। इस मामले में जो है कुछ और ये जो इन हालात के दौरान में कुछ हमारे एक सहाफ़ी जो है जो काफ़ी जो है हमारे पास जब 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त हुआ तो काफ़ी काम किए, लेकिन बाद में उन्हें भी कुछ मुख्तलिफ इस पर कुछ ऐसे हालात आए कि उनके ऊपर भी जो है पिछले दिनों एक केस हुआ। तो मैं अकबर खान साहब और जो है हमारे एजाज खान साहब वगैरह जो है मुकामी जो है मिनिस्टर से बात करके बोले कि साहब ये वो मिनिस्टर के ऊपर कुछ लिखे थे तो उस पर वो लोग FIR बुक किए। FIR करने के बाद में हम लोग फिर मिनिस्टर से बोले कि साहब ये मुनासिब नहीं है कि आप रमज़ान का मामला है, फिर इससे पहले जो भी है हम लोग ईद के बाद बैठ के बात करेंगे। तो उनकी अरेस्टिंग वगैरह को तो रोक दिया गया हम लोग नुमाइंदगी करने के बाद में। अब इंशाल्लाह शायद वो उस मामले को भी जो है मैं एजाज भाई और जो है अकबर खान साहब हमारी फेडरेशन की टीम इंशाल्लाह मिनिस्टर से बात करके ख़त्म करेगी। और रही बात डबल बेडरूम की, वहाँ भी जो है ये यूनियनों के मामले की वजह से हमारे पास जो है पिछली मरतबा जो है 5000 जो है डबल बेडरूम जो है तैयार बिल्कुल तैयार हैं, जिसके अंदर हम लोगों की सबकी नुमाइंदगी एक मरतबा 10 साल पहले जो है हम लोगों की नुमाइंदगी पे ऑलरेडी जो है इम्कराजात के पट्टेजात जो है 100 उर्दू 100 जुमला 100 सहाफ़ियों को, जिनमें से जो है 50 उर्दू सहाफ़ी उनको खुद मेरी अपनी क़ियादत में दिलाए गए और वो तकरीबन लोग उसमें से जो है कुछ लोग बाकी रख लिए और तकरीबन लोग जो है उसको फ़रोख्त भी कर लिए। अब डबल बेडरूम का जब मामला आया तो उस वक्त ये अब जो मौजूदा हमारे मिनिस्टर हैं जो इस वक्त वज़ीर जंगलात हैं, तो उनका बोलना ये है कि भाई मैं पिछली मरतबा आप लोगों को दिया तो आप लोग कोई भी नहीं रख लिए जो है उसको फ़रोख्त कर दिया। और जिस जगह पे जो है उस वक्त में जो हमारे साथी जो है जो बड़ी मुश्किल से जो है 25,000-30,000 में प्लाट उस वक्त में जो है 50-40 का प्लाट जो है फ़रोख्त किए, आज वहाँ पे जो है 20 लाख रुपए प्लाट की कीमत है जो रख लिए। बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ एक 50 में से जो है 10 सहाफ़ी शायद वो फ़रोख्त नहीं किए, बाकी से फ़रोख्त करिए। तो अभी फिर नुमाइंदगी पे मिनिस्टर का बोलना यह है कि भाई मैं पिछली मरतबा जब आप लोगों को दिलाया था तो आप लोगों ने नहीं रखा नहीं उसको, तो फिर बार बार उनसे नुमाइंदगी के बाद अब उनका ये बोलना है कि भाई सीनियर जो सहाफ़ी हैं उर्दू और तेलुगु के, उनके लिए जो है मैं किसी इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल प्लाट्स और मैं इंडिविजुअल जो है 40-50 एक जगह किसी जगह अगर 10-20 भी बनते हैं तो सीनियर्स के लिए मैं उनको इंडिविजुअल दूंगा, बाकी लोगों के लिए डबल बेडरूम में एक ब्लॉक मख्तस कर देंगे। लेकिन उसमें जो है तेलुगु वाले तो मान गए मगर हमारे लोग अब तक नहीं माने उसको। हमारे लोग मतलब हम लोगों का, और ये बात खुले तौर पे कही जा रही जो कि भाई हम गैरों के साथ रह नहीं सकते, ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो चीज़ मिनिस्टर के लिए भी क्या हो रहा बोले तो इसका तकलीफ से क्या हो रहा सहाफ़ियों के अंदर जो है तकसीम हो जाए। वो लोग जो है इसरार करेंगे ठीक है सब, अगर वो नहीं चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये इस किस्म के हमारे पास ऐसे हालात हैं जो आदमी देने तैयार है, ब्लॉक मख्तस करने तैयार है, और लेकिन जो है हमारे वहाँ पे जो है हमारे पास लेने के लिए जो है आपस में लड़े।
भाई कुछ चंद लोग बोलते कि ले लेना चाहिए चंद लोग, फिर एतराज ये है कि भाई सीनियर्स, ये बात यूनियन की तरफ से किसी सहाफ़ी की तरफ से नहीं आई थी, खुद मिनिस्टर उनकी तरफ से ये आई कि भाई सीनियर्स के लिए मैं इंफरादी तौर पे जो है इंडिविजुअल जो है डबल बेडरूम बना के दूंगा। तो उसमें भी जो है सबसे पहला एतराज़ करने वाले हमारे अपने लोग। तो ये सारे मामला जो है हर जगह के मसाइल तो एक जैसे हैं, लेकिन बाज़ जगह जहाँ हमारे लिए आसानियाँ हैं वहाँ पे हम खुद जो है अपने इख्तिलाफात की वजह से उसको मुश्किल बना लेते हैं। और जैसा अभी एक हमारे अपने साथी एक सहाफ़ी ने अभी का हमारे भाई ने कहा, बेशरा मुकर्रम ने, कि भाई थोड़ा सा इसमें फिर हमारे फेडरेशन के ज़िम्मेदारों से भी जो है मेरी दरख्वास्त है कि तरबियती क्लासेस का जो सिलसिला है वो तो जारी रहे, उसमें हमें हमारे लिमिट्स बताए जाए। हो रहा है कि जो है हर जगह जाके जो है हम बिलखुसूस जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद से ऑफिस में, दवाखानों में या फिर हर जगह, और बल्कि एक्सरे रूम्स में, स्कैनिंग रूम्स में पहुंच के जो है कैमरे लेके हमारे लोग पहुंच जाते हैं। और जो है किसी जगह जो है पिछली मरतबा पिछले ही हफ्ते जो है मैं एक लाइसेंस के सिलसिले में मेरा जो है अपने RTO ऑफिस जाना हुआ, तो वहाँ पे जो है एक तेलुगु के सहाफ़ी जो है बड़े नामवर अखबार, तेलुगु अखबार के जो तेलुगु TV चैनल के सहाफ़ी अपने स्टाफ के साथ में आ गए कि और आके जो है वहाँ पे जो मतलब लाइन में जो लोग अपने फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास आके कोई लेडी के पास आके बोल रहे हैं कि भाई उन्हें अपनी ड्यूटी कर रहे, उसको बोल रहे हैं कि आप अभी इसी वक्त में इंटरव्यू दो। इत्तेफाक से उनके कैमरामैन जो है वो मुसलमान थे और वो सहाफ़ी तो खैर गैर मुस्लिम थे। तो खैर ये चीज़ें जो है थोड़ा सा हमें फेडरेशन के जिम्मेदारों से दरख्वास्त है कि तरबियती क्लासेस रखे जाएँ और हमें हमारे लिमिट्स और हमारे क़वाइद जो है हमें भी थोड़ा समझा दिया जाए सबको, क्योंकि इस मामले में जो है जहाँ तक इल्म के सीखने का मामला है वो तो हम सभी जो है उस मामले में बिल्कुल हम लोगों को सबको सीखना चाहिए। जब तक हम जो मैदान में हैं तो उस मैदान का इल्म हमको होना चाहिए, हमारे लिमिट्स क्या हैं, हमारे हुदूद क्या हैं। और इस समा खराशी की माफ़ी चाहते हुए आखिर में फिर एक बार यही कहूँगा कि जो कौमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो भी जिम्मेदारी ज़िले निर्मल यूनिट को दी जाएगी उस सिलसिले में जो है हम खादिमीन फेडरेशन उसको पूरा करने के लिए तैयार है। जो भी जिम्मेदारी हो इंशाअल्लाह जो है हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो मौका मुझे दिया गया इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इंशाअल्लाह जो अहम है 2-3 बातें सामने रखता हूँ। आप लोग तो हरीश राव साहब को बहुत करीब से जानते हैं, हमारे साहब भी जानते हैं, मांझी साहब भी जानते हैं। तो सिद्दीपेट में जो है सो रिसेंटली जो है सो डबल बेडरूम जो है सो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पट्टा सर्टिफिकेट दिए हैं और मकानात हैंडओवर नहीं हुए, एक हफ्ते के नीचे दिए हुए। तो इसमें जो है सो जो नए अखबार हैं उर्दू या तेलुगु छोटे भी अखबार हैं, उसमें जो है सो यूट्यूब चैनल्स भी है और फोटोग्राफर्स भी, जैसे कि हरीश राव साहब प्राइवेट फोटोग्राफर को भी रख लेते हैं, उनको भी मीडिया के नीचे ऐड करके उन लोगों को भी डबल बेडरूम दिए हैं। तो जिसमें जो है सो हमारे जैसा कि विकार दक्कन है, साज दक्कन है, महावर निज़ाम विपक्ष वाला है, नए जो लोग आए उन लोगों को किनारा कश कर दिया, यानी कि उन लोगों को नहीं दिए। तो तेलुगु अखबार में कलाश वालों को भी दे दिए, जैसा कि कोई ID कार्ड भी है तो उन लोगों को दिया गया है। हमारे पास जो है सो चंद लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड रहने के बाद भी नहीं दिया गया। तो यूनियन की तरफ से अपन जो है उसको हल करना चाहिए, रखना चाहिए, बात हो करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है बोले तो सिद्दीपेट मुकाम पे जो है सो कैस्ट वाइज जैसा कि SC कम्युनिटी बन के उन्होंने एक संगम बना दे, यानी कि रिपोर्टर्स जितने भी SC और जो सो टाउन रिपोर्टर जितने भी होते हैं उन लोग एक संगम बना कि हम पूरे टाउन के, रूरल के जो है उनको उन लोग बना ले। ऐसा बना के जाके जो सो हरीश राव के सामने रख देते हैं, उन लोग जो सो उनको जो सो ज़मीन अलाटमेंट करते हैं। तो रिसेंटली 130 गज पर कैंडिडेट के हिसाब से जो है सो उन लोग 1 महीने के नीचे अलाटमेंट करके दिए गए। मैं नुमाइंदा सहारा हूँ, हैदराबाद एडिशन जब लॉन्च हुआ 2006 से तब तक नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आज तक जो सो 1 गज ज़मीन भी नहीं मिल चुकी, कई मरतबा रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और दूसरी बात क्या है बोले तो एक्रेडिटेशन कमेटी मेंबर के लिए मैं फैसल साहब को भी हमेशा बार बोलते जाता हूँ, उनके एड्रेस पे भी काम कर चुका हूँ। मैं कभी भी उर्दू अखबार वालों को एक्रेडिटेशन मेंबर नहीं दे, तो आइन तब पे लेके आ रहे हैं, नई लिस्ट आ रही, नई बन रही,
वो कहाँ से बन रही, क्यों जा रही, नहीं मालूम। जब लिस्ट जब आने के बाद DPRO के सामने जाके जब मैं बहस करता हूँ, दबाव डालता हूँ, तो DPRO यही कह के मुझे समझाता है कि भाई साहब आपके कितने भी है लोग बोलो कि मैं एक्रेडिटेशन दिलाऊँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। उन लोग जो है ले लेके गए, ऊपर से ला लिए, तब जाके आप कर लेना था। तो जब मैं दबाव डालता हूँ, लड़ता हूँ, करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर उर्दू साहबी को एक्रेडिटेशन कार्ड मिल चुका है। तो और एक बात क्या है बोले तो, जैसे कि भाई साहब अभी भी बताए थे कॉन्फ्रेंस में, जो है 11 बजे से 12 बजे तक हरीश राव साहब का भी जो है इसमें स्पीच है, खिताब है, कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलकर हो रहे। तो मैं माजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हरीश राव साहब के बजाय KTR साहब को रखे तो बेहतर होगा। उन्होंने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है, CM के जो फर्जंद है, तो अच्छा होगा। हरीश राव साहब का रवैया उर्दू मीडिया के साथ, मुसलमानों के साथ कुछ अलग है सर, क्योंकि आप लोग को नहीं मालूम, हम सिद्दीपेट में रहते हैं, सिद्दीपेट में देखते हैं करीब से। रिसेंटली जो है लास्ट 2 ईयर से मैं फैसल साहब के नोटिस में भी स्पॉट पे लेके आता हूँ चंद चीज़ें, उनके गाइडलाइन से थोड़े काम आगे कर लेता हूँ। तो हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जो असेंबली में बजट पेश किया जाता है, तो उस टाइम पे सिद्दीपेट के साहब को ले लेके जाते हैं असेंबली। जैसे कि असेंबली जब चलती है तो जो मीडिया का पॉइंट होता है, वहाँ पर बैठ के असेंबली किस तरह चलती है, मीडिया लोग किस तरह न्यूज़ कवरेज करते हैं, किस तरह वो करते हैं बोल के वहाँ पर ले लेके जाके 2 साल से पूरे जो है सो स्टाफर्स को ले लेके गए, इलेक्ट्रॉनिक को लेके गए, तेलुगु मीडिया को लेके, उसमें कभी कोई उर्दू मीडिया के लोगों को नहीं लेके, मुस्लिम रिपोर्टर को नहीं लेके। तो ये बात मैं फैसल साहब के भी नोटिस में ला चुका हूँ। तो अपन जो है ऐसे चीज़ों को जो है सो यूनियन के तहत अपने लेटर पैड पे जो है सो अपन बात रख भी सकते हैं। अब उनके पर्सनली अपने को किनारा कश करना चाह रहे हैं या समतला सलूक करना चाह रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है सो मुझे गवारा नहीं दिख रहा। तो लिहाजा जो है हरीश राव के बजाय KTR साहब को ला के अगर हम यूनियन की तरफ से कोई डिमांड्स रखे, कुछ हो सके, तो शायद उनसे होने के इम्कान रहते। अगर किस्मत में नहीं रहा तो अलग बात है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है यूनियन को। तो और एक दूसरी बात क्या है बोले तो, जहाँ पर भी जो है जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जैसा कि अब जैसा मुझे ज़मीन नहीं मिली, 2-3 साल ऐसा कई रिपोर्टरों को ज़मीन मिली, किसी को 200 दिए, किसी को 300 दिए, किसी को 150 ज़मीन पे रहा। तो हमारी रियासती यूनियन की तरफ से जो सर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रहता है हमारे RT के तहत जो है अपन अप्लीकेशन डालेंगे, अपने को मिल जाता है। उसके बाद हम कलेक्टर को पूछना है या MLA को पूछना है या हुकूमत को पूछना है कि फिर रिसेंटली ऐसे वालों को इनको मिलता है तो जितने लोगों को क्यों नहीं मिलता, इसकी वजह क्या है। तो स्टेट लेटर पैड पे जब अगर दबाव डालते हैं तो उसका हल निकलने का कुछ चांसेस रहते हैं बोले, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो है सो क्या बोलते हैं, दूसरी बात भी और एक बताना चाह रहा हूँ मैं कि मेरे हमारे फेडरेशन के सदर कलीमुर रहमान साहब है, मेरी उनकी पर्सनली है, तो उन्होंने भी जो है हरीश राव के रिलेटेड जो है किताब शाये करे, सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की के नाम पे जो है किताब शाये कर रहे थे, उसकी रस्म इजराई थी। तो उन्होंने उसी सिलसिले में 2 दिन के नीचे आने के फ्राइडे और संडे है, फ्राइडे का दिन, तो उनको जो है बुलाया गया। तो पूरा मीडिया उनके साथ है, किताब इजराई कर रहे हैं। चलो भाई, अपने साथी है ना साथी है ना, उनके यूनियन को हटा के तमाम साथ हैं उनके साथ है। और जो है मौजूद शहरियान भी मौजूद थे वहाँ पे, उलमाए-ए-दीन भी मौजूद थे वहाँ पे, और तमाम रज़ाकाराना तंजीम जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं उन लोग भी साथ थे। तो वहाँ पर जब जाया गया, कैंप ऑफिस में बुलाया गया 3-3:30 को, 4-4:30 तक भी उन्होंने वहाँ पर मौजूद नहीं आए। हरीश राव साहब सिद्दीपेट में रह गए। उसके बावजूद भी जो है बार बार फ़ोन करने के बाद किसी दूसरे जगह प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ बुलाया गया। बुला के जो है जैसा कि प्रोग्राम चल रहा, बैठने को सीट में थे, 1-1.5 घंटा खड़ा कर दिए। खड़ा करके जो है फाइनली में होने पर बुला के सिर्फ 1 मिनट में किताब ले लिए, 2 फोटो ले लिए, जवाब बोले भेजा। तो इस तरह मुसलमान रिपोर्टरों के साथ, यानी कि उर्दू मीडिया के साथ इस तरह रवैया है उनका। बेहतर होगा कि उनके प्लेस में किसी और को किया हो या जो मुनासिब समझे वैसे लोगों को वो करे। और जो भी प्रॉब्लम्स ज़िले में जितने भी होते हैं, आपके लेटर पैड से वहाँ पर अलग से कुछ नुमाइंदगी करे तो बेहतर होता। मेरे को जो वक्त दिया गया उसको मोहतरम मकाम अली साहब, इब्न माजिद साहब, सदर फेडरेशन हबीब जिलानी साहब,
हमारे गौस मुहिद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी, और हमारे दीगर सोहेल शाह साहब, हमारे अजमत अली खान शाह साहब, हमारे नायब सदर, दीगर साहब जो डायस पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं नाम से सबके वाकिफ़ में मौजूद खान हूँ। मौजूद साथियों, यकीनन जो इक़दाम हमारा फेडरेशन करने जा रहा है काबिल सताइश है कि कौमी कॉन्फ्रेंस की सख्त ज़रूरत थी और फेडरेशन की ये फ़ैसला कि कौमी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में उर्दू सहाफ़त के मुताबिक मुनक़िद की जाए, वक्त का तकाज़ा था, क्योंकि अभी हमने उर्दू सहाफ़त के 200 साल तकमील किए हैं। इस ज़िम्मन में हमने भी मुख्तलिफ़ उन्वान से प्रोग्राम मुनक़िद करने की कोशिश की है अज़ला में भी, और किए भी हैं, और हम चाहते थे कि भाई रियासती सतह पर भी कुछ ऐसा काम हो जिससे कि उर्दू सहाफ़त जो खिदमात हैं इस मुल्क की तामीर और तोसी और इस मुल्क की आज़ादी में, उसको उजागर किया जाए। और जब फेडरेशन ने यह फ़ैसला किया तो हमें काफ़ी मसरत हुई, और हम भी दीगर हमारे साथियों के मुताबिक उनकी जिस तरह उन्होंने तायद की, हम भी इस फैसले की तायद करते हैं, और जो भी जिम्मेदारी हम पर आयद की जाएगी ज़िले की सतह पर, इंशाअल्लाह मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर की सतह पर हम बराबर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मेरी एक तजवीज़ ये है कि उर्दू सहाफ़त ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया है। मैं एक तजवीज़ में अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से क्या मुत्तहदा ज़िला महबूबनगर के तमाम सहाफ़ियों की तरफ से है कि उर्दू सहाफ़त का जो रोल मुल्क की आज़ादी में रहा, उस पर एक सावनियत अंग्रेज़ी में भी शाये किया जाए और उर्दू में भी शाये किया जाए, और जो ज़िम्मेदारान जो दीगर यानी कि हमारे सियासी कायदीन जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तक पहुँचाई जाए, ताकि पैगाम उन तक भी जा पहुँचे कि किस तरह का रोल हमारी उर्दू सहाफ़त ने इस मुल्क की आज़ादी में, फिर माबाद आज़ादी मुल्क की तामीर और तोसी में अदा किया है। ये अगर काम किया जाए तो उन तक हमारा पैगाम पहुँचेगा, और ज़रूरत भी है हमारे पैगाम को पहुँचाने की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अज़ला में मौजूद एक है, उसी पर मैं अपनी बात को रखना चाह रहा था, लेकिन फिर भी इतने भाइयों की शिकायत है, थोड़ा 1-2 मिनट में भी इजाज़त के साथ मैं रखना चाहता हूँ कि तेलुगु की बनस्बत, तेलुगु सहाफ़त की बनस्बत उर्दू सहाफ़त को काफ़ी हक़ी नज़र से देखा जाता है ज़िले से। उसमें कुछ हमारी भी कमजोरियाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारियाँ सियासी कायदीन की हैं। देखिए मसाइल तो हैं, मसाइल हैं, जैसा कि हबीब जालिब का एक शेर है, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजीब अपना सफ़र है फासले साथ चलते हैं। हुकूमतें बदलती हैं, कायदीन बदलते हैं, लेकिन उनका रवैया तो एकसा होता है हमारे साथ, उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती, और हमारी जो जद्दोजहद का जो सफ़र है वो जारी रहता हमेशा। हम कोई ऐसा कायद नहीं आया, कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो पकड़ के हाथ पकड़ के उर्दू सहाफ़ी के मसाइल को हल करने की बात की हो, काम किया, ऐसा कोई नहीं आया। खुद हम अपने तौर पर ज़िलाई सतह पर हमें भी अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है। तमाम उर्दू सहाफ़ी अगर एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे मिलकर मुत्तहदा तौर पर काम करते हैं तो हम झिझोड़ सकते हैं, कुछ झुका सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महबूबनगर में हम ये काम कर रहे हैं। हमारे मजिद साहब की क़यादत में फेडरेशन के इंतखाबात हुए, फेडरेशन में हमारे पास तमाम अज़ला में 5 अज़ला में हमने कमेटियाँ डाली, और 5 अज़ला में भी हमारे पास जो सर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, मुत्तहदा तौर पर सहाफ़ी फेडरेशन के तहत काम कर रहे हैं, मसाइल लड़ रहे हैं। मगर कुछ अज़ला में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुस्लिम सहाफ़ी, मैं नागर कानून की मिसाल देता हूँ, नागर कानून में एक हमारे मुसलमान सहाफ़ी हैं तेलुगु के, ईनाडू के, वो एक्रेडिशन कमेटी के मेंबर हैं, और एक्रेडिशन कमेटी में उर्दू सहाफ़ी की नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से वो हमेशा उर्दू सहाफ़ी को रोड़ा रखता थे, और हमेशा उर्दू सहाफ़ी को एक्रेडिशन देने को रोकते। हम जद्दोजहद करते हैं, हम डायरेक्ट DPR से लड़े, वहाँ के हमारे वहाँ के सहाफ़ी, हमारे फेडरेशन के कायदीन कलेक्टर से लड़के हर बार को लड़ना पड़ा, 3 मीटिंग में लड़के दोस्तों हमारे लोगों को एक्रेडिशन करवाना पड़ा। तो ये जो मामला है उर्दू एक्रेडिशन कमेटी में एक उर्दू मेंबर का, अब हमको एक्रेडिशन कमेटी में किस तरह की नुमाइंदगी दी जा रही है क्या, बड़े अखबार के तौर पर। कभी कभी क्या करते हैं भाई, सिर्फ तेलुगु अखबार को देते, उर्दू अखबार को देते नहीं, कुछ असला नहीं भाई तेलुगु अखबार हैं बड़े उनको देते हैं। तो मेरी आप गुजारिश है साहब यहाँ पर आपसे, आप लोग नुमाइंदगी कीजिए, जो अरबाब मजाज हैं उनसे नुमाइंदगी कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो लेजिस्लेशन लाने के लिए, कानून साजी के लिए आप लोग उनको आप पाबंद कीजिए कि एक्रेडिशन कमेटी में उर्दू के नाम से रुकन दिया जाए, अखबार के नाम से ना दिया जाए। उर्दू जुबान, क्योंकि हम हमारी रियासत में उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जहाज मकाम में दे रहे।
अगर उर्दू सहाफत की तरफ से एक नुमाइंदा इस तरह से अगर आ गया तो 100% हम अगर अकोमोडेट होते कमेटी में, हम लड़ सकते। अब बड़े अखबार में कभी दे रहे कभी नहीं दे रहे। गुज़िश्ता हमारे अहमदनगर में ऐसे हुआ, हर साल हमेशा हर एकेडमिक कमेटी में एक नुमाइंदा उर्दू रहता था। अब परसों नहीं भाई उर्दू दूसरे तेलुगु अखबार से बड़े उनको देना पड़ता है, तो आपको नहीं दे रहे भाई। हम डट गए, हम लोग डट गए, आगे मुकामी वजीर को हम झुका दिया। हम बोले नहीं, सवाल ही नहीं होता, इस बार उर्दू का होना नुमाइंदा। मजबूरन उनको सुनना पड़ा। एक नाम आ गया था, नाम को कटवा के हमारे में दाखिल किया। हमारे अब्दुल्ला सिद्दीकी स्टाफ रिपोर्टर है सहारा के, उनका नाम ऐड हुआ। तो खैर हम मुतहद होकर लड़ रहे हैं, हम हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर उर्दू सहाफ़ी का एक एकेडमिक कमेटी का मेंबर बनाना लाजमी हो जाएगा तो हमारी नुमाइंदगी लाजमी हो जाएगी, तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए रियासती सतह पर नुमाइंदगी की ज़रूरत है। जो क़वानीन हैं, जो ज़वाबित हैं, उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। उसके लिए फेडरेशन के मरकज़ी क़ायद अगर काम करें तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल सकते हैं। और रही बात डबल बेडरूम वगैरह की, तब से मैं सुन रहा हूँ, हमको अपने तौर पर ताकतवर बनना पड़ा। महबूबनगर में हम साबित कर दिए हैं, हमारे मुकामी वज़ीर उन्होंने हालांकि ये भी बोले हैं भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उर्दू के रिपोर्टर दिखते नहीं, तुम ना 8-10 जने दिखते, बाकी लिखा है। हम बोले नहीं, सब डेस्क पे है, थोड़े जने फोटोग्राफर है, कुछ वीडियोग्राफर है, कुछ आते कुछ जाते। साहब ये है लिस्ट हमारी, आप देना हो, हम करें इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो बहुत जल्द हमको भी यूज़ों पर डबल बेडरूम मिलेंगे। भाई अपने आप में ताकत बनाने की कोशिश करो। ये आपके हाथ में खलम है, आप सहाफ़ी हैं, आप समाज का आईना हैं, समाज को आपसे उम्मीदें हैं। और हम नाउमीद होकर अगर सियासी खातिर की तरफ देखते रहेंगे और नाउमीद हो जाएंगे तो फिर समाज को हम क्या देंगे समाज को? हम अपने आप में ताकत बनने की जरूरत है। हमारे हाथ में खलम की ताकत है। अगर आपका मिनिस्टर नहीं मान रहा तो लगातार एक हफ्ता उसके खिलाफ लिखिए। आप एक हफ्ता लिखिए, एक हफ्ते के बाद बुलाता आप क्या भाई मिनिस्टर क्या होती है बोलिए। आप ये मत समझे कि उर्दू अखबार नहीं पढ़ता। वो लोग इतने होशियार होते हैं कि हमारे में से उनके मकबे रहते हैं, देखते रहते हो ना। साहब आज तुम्हारे सहारा में तुम्हारे खिलाफ बिजली साहब इतनी बड़ी न्यूज़ डाला, बोलता जाएगा बराबर। 8 दिन आपके अखबार में खबरदार हो, 9वें दिन तुम आपके सामने सर झुकाता हूँ। आप डरो मत, अपने आप में ताकत पैदा करो, जब कहीं जाके आपकी बात मानी जाए। वरना हम अगर उनके ऊपर तकिया का करेंगे या उनको नजरअंदाज करने की बात को लेकर हम मायूस हो जाएंगे तो हम दूसरे सहाफ़ी के साथ इंसाफ नहीं करते। हमको लड़ने की जरूरत है। और सहाफ़ी जदोजहद का पैकर होता है। जदोजहद हमारे पास, हमारे मुकद्दर में लिखी है, हम लिखा जदोजहद कर रहा हूँ, हम हारने दो। ये बड़ी बात अगर बोला तो माफ़ी चाहूँ, माजरत हूँ, मेरे से बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, सीनियर साहब मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, मेरी बात समझ जो है बात मैं रख रहा हूँ कि अपने आप में ताकत बनाइए। जिले से करिए तमाम सहाफ़ी, मैं देख रहा हूँ साहब इतनी तेलुगु सहाफ़ी में ग्रुपिज्म नहीं है, उर्दू सहाफ़ी में ग्रुपिज्म होता है। सहारा के रिपोर्टर्स को एतमाद के रिपोर्टर से चिट, एतमाद के रिपोर्टर को सियासी के रिपोर्टर से चिट। अरे भाई वो इदारे क्या, तो कल इदारों का मसला है वो। अरे आप तो मुत्तहिद रहो, आप अपने मसाइल हल करो, आप सब मिलकर एक जगह बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह हम नगर में आज ना एतमाद के रिपोर्टर सहारा के रिपोर्टर के खिलाफ है, ना तमाम लोग, बल्कि जो बिल्कुल नए जरीदे नए अखबार जो आ रहे हैं उनके रिपोर्टर्स को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर्स को भी साथ लेके जा रहे हैं। कोई मसला नहीं। अगर हम सब मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आपके मसाइल होने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात कुछ और झेली मसाला है, उसके लिए कानून साजी की जरूरत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि एकेडमिक कमेटी में उर्दू सहाफ़ी को रुकन बनाने के लिए कानून साजी की जाए। उसके लिए आप लोग नुमाइंदगी करें। मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता है तो फिर अजला में उर्दू सहाफ़ी के साथ यकीनन इंसाफ होगा। और रही बात, मैं मेरी जो तजवीज़ है, अब जो कॉन्फ्रेंस है, वो कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा कदम है। मैं चाहता हूँ कि हरीश राव वगैरह खुद केसीआर साहब को मौजूद करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग जो अजला से भी तमाम सहाफ़ी मिलकर शिरकत करेंगे। बल्कि हैदराबाद ऐसी ज़रख़ेज़ सरज़मीन है जहाँ अदब के मानने वाले हैं। अगर हमारी सहाफ़त का प्रोग्राम है तो हम लोग भी शिरकत करेंगे, बड़ी तादाद में लोगों को शरीक करने की कोशिश करेंगे, तशहीर करेंगे। और चूँकि ये ऐसा चीफ मिनिस्टर मेरी दानिश में मसाइल को समझने की सलाहियत है, और माही साहब अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी आप माही साहब को अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर हम उनको बुलाकर अगर हमारे मसाइल सामने रखेंगे तो कुछ ना कुछ मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। और जो फैसला है फेडरेशन का कि कौमी कॉन्फ्रेंस रखी जाए, हम उसकी पूरी तैयारी करते हैं और हर तरीके से फेडरेशन बनने के लिए तैयार है। मुझे जो मौका दिया, शुक्रिया। और कम्युनिटी के सहाफ़ियों की जानिब से जैसा कि हुक्म दिया गया है, बहुत जल्द 2 मिनट में अपना बयान ख़त्म करूँ। कम्युनिटी के सहाफ़ी क्या बताऊँ, आप तमाम वाकिफ़ हैं। कम्युनिटी ज़िला बनने से पहले वहाँ का जो सहाफ़ियों को रहायशी इम्कानात दिए थे मोहम्मद अली शब्बीर की इक़्तिदार में, वो ज़िला बन रहा था उनके खुश होने से। ज़िला बन गया तो उसको कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए
अपनी तहवील में लिया, खींच लिए, जिसमें हमारे सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी खत लेवल तक काम किए, तामीर किए, बगैर किसी नोटिस के उनके घर को मुसमार कर दिए, ले लिए। तकरीबन 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसे कई मसाइल हैं वहाँ, जैसा एक्रेडिटेशन कमेटी में नुमाइंदगी नहीं है, उर्दू में जो है ना प्रेस नोट नहीं दिया जाता DBR की तरफ से, जबकि हर महकमे में जो है सो उर्दू दान का तखर्रुर अमल में ला, मगर अमल आवरी सिफर के बराबर है। मेरी गुजारिश है इन कायदीन से कि वो उस जानिब भी तवज्जो दें, अजला के नुमाइंदों को सहूलत हो सके। इन्हीं ख्याल के साथ इजाज़त दीजिए। खुश मैं जगत्याल से ज़मीर अली अदनान, जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल कम वक्त लेते हैं, अपने छोटे से 2-3 मसाइल हैं। आज मेरी जगह हाफिज़ आबिद मरहूम साहब थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे तंजीम के, जिसको सिलेक्शन हुए बाद से 3 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ। राष्ट्रीय सहारा के रिपोर्टर थे, जगत्याल से जनरल सेक्रेटरी उनको सेलेक्ट कर लिए थे। इसके 3 महीने के बाद उनका इंतकाल हुआ कैंसर की वजह से। तो सदर साहब भी मुझसे के लिए आए थे, मोदी साहब। तो मैं गुजारिश है कि उनके फैमिली बहुत पूर हालत में है, बहुत गुर्बत में गुजार रहे, बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर वजीफे के तौर पे उनके घर के लिए कुछ अगर तंजीम की तरफ से अगर कुछ हो सका तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। मुझे मौका दिया गया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथी जो अजला से हैं या शहर से हैं, वो हमारी इस मशावरती इजलास के लिए अपना उन्होंने वक्त निकाला। कुछ लोग तो काफ़ी तवील सफ़र करते हुए आए हैं, ये बहुत ममनून और मशहूर हूँ। यहाँ कुछ बातें जो कुछ मैंने रिकॉर्ड की हैं, इसमें यकीनन अजला के जो मसाइल हैं, अजला के मसाइल में बहुत सी चीज़ें, जैसा कि बताया गया, एकसानियत, काफ़ी एकसानियत है। तो देखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हर ज़िले में कुछ ख़ास मसाइल भी तो हैं, मजमूई मसाइल तो ज़रूर हैं। तो इसके लिए हमारी इस जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें रेजोल्यूशन, फिर रेजोल्यूशन के साथ उसमें हमको काम, आप सिर्फ रेजोल्यूशन कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पढ़ने से ही नहीं होगा, बल्कि रेजोल्यूशन तो होगा, उसके आगे हमको आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन करना है वो भी तो देखना है। तो आप अंदरून 1 हफ्ता अपनी जो रेजोल्यूशंस होती हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की जो रेजोल्यूशंस होती हैं, वो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी साहब को भेज दें, चाहे वो हाउसिंग के मामले में हो, ऑपरेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, या एजुकेशन के मामले में हो, या जो भी हो। तो इसमें हम उसको, आप तमाम की रेजोल्यूशंस जो भी आएंगी उसको हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके उसको एक जामे शक्ल देंगे। उसके लिहाज से हम जो कॉन्फ्रेंस होगी हमारी उसमें जो है उसको पेश करेंगे। इसके लिए देखिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अजला में हो या शहर में हो, इस कॉन्फ्रेंस की आप पब्लिसिटी करें। जनरल सेक्रेटरी साहब आपको मतलब हमारी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में आपकी रहनुमाई करेंगे, किस नौयत का जो है, क्योंकि कुछ स्लोगन्स वगैरह हमारे नहीं बने अभी पूरे, तो वो आपको तशहीर हर ज़बान में, तेलुगु में, उर्दू में लोगों को राग़िब करें और ये वाकिफ़ करवाएं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता। तो ये तशहीरी काम ये हमको ज़रूर करनी है। रही बात मसाइल के बारे में, जैसा मैंने कहा, बाद लोग टूल गेट के, देखिए 2 मसाइल ऐसे हैं जो मरकज़ी हुकूमत के तहत हैं। टूल गेट का मामला है, रेलवे पास का मामला है। तो हमारी जो कौमी यूनियंस हैं उनके ज़रिए तो नुमाइंदगी हो रही है, लेकिन इसके लिए किस बेहतर तरीके से हम अपने लेवल पर यहाँ जो मरकज़ की नुमाइंदगी करने वाले हैं उनको, हमारी उस रेजोल्यूशन जब बनेगी उसके साथ हम ये मामले को भी जोड़ लेंगे। नुमाइंदगी करना हमारा काम है। ये तो कुछ मामले। रही बात, बहुत सी बातें हुई में, जो हमारी कोर कमेटी है वो ज़रूर आपकी तजवीज़ पर भी बात करेगी कि किस बेहतर तरीके से जो है हमारी अपनी नुमाइंदगियों को आगे बढ़ाया जाए।
रही बात फैसल साहब की बातें बड़ी वो रही, तो एक तो ये कि डबल बेडरूम का जहाँ तक है, अब देखिए गुज़श्ता दिनों हमारी एक नुमाइंदगी हुई इस शहर के बारे में। मैं हमारे सिटी के प्रेसिडेंट साहब से मैं कहूँगा कि वो अंदरून 15 दिन अगर अपना काम कर रहे हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है ऑनलाइन, आपको जो है हाँ फॉर्मेट दिया गया है। हैदराबाद में चूँकि ज़मीन नहीं है, जो लोग जो मतलब जो जिनके यहाँ छत नहीं है, जो बेघर हैं, उनके लिए एक नुमाइंदगी की गई है। तो अब जिस नुमाइंदगी के सिलसिले में हमने बात की तो कहा कि भाई इस महीने में आप अपनी लिस्ट दे दें ताकि हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए जिसके ज़रिए हमारी नुमाइंदगी हो रही है इस सिलसिले में। तो मैं हमारे आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काम को 15 दिन के अंदर अपना जहाँ तक हो सके कर दें, चूँकि ये बताया जा रहा है हमारे को कि तासीस से तेलंगाना के बाद कभी भी शायद इलेक्शन की डेट कभी भी आ सकती है। तो बेहतर ये है कि जब इलेक्शन होड़ लग जाए तो मुश्किल हो जाएगी, उससे पहले हमको ये काम करना है। जहाँ तक आसिफ साहब की बात है, देखिए उन्होंने बड़ा अच्छा काम तो ये किया है कि एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस का काम किया है। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में तो हम हैं, मैं फैसल साहब की सलाह लूँगा इस काम के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी, क्योंकि हमारे जितने मेंबर्स हैं मैं समझता हूँ कि काफ़ी तादाद बढ़ रही है हमारी, उसके लिहाज से हम ये हमारे फैसल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदों से थोड़ी सी बात करें कि किस हद तक ये हमारी फेडरेशन के तमाम अरकान को इसको कवर किया जा सकता है, ताकि उनको भी इसका जो है बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास एक अच्छा तजुर्बा है। तो ये चीज़ें रही बात हादिसात, ये तो हो गई। रही बात कौमी कॉन्फ्रेंस के उन्वान के बारे में, यकीनन ये कोर कमेटी में भी कहूँगा कि इस सिलसिले में हम एक व्यू लेने की हमें ज़रूरत है। एक मिनट सर, ये सर प्रोफेसर सर, हेलो।